کہ میں گھر آیا تو روٹی پکی ہوئی نہیں تھی. اماں بیچاری بوڑھی، بیوی گئی ہوئی تھی، بچے گئے ہوئے تھے. اماں بیچاری بوڑھی کسی کام میں، گھر کی صفائیوں میں لگی ہوئی تھی. گھر میں خادمائیں کچھ نہیں تھی. میں اماں سے الجھا اور میں نے اماں کو تھپڑ مار دیا. اور اماں کے منہ سے خون تھا اور اماں رو رہی تھی. کہتے اچھا بیٹا میں تجھے کھانا روٹی پکا دیتی ہوں. اور اپنے دوپٹے کو نا منہ میں دے کے خون چوس رہی تھی. خون نہیں ابل رہا تھا اماں کا. پھر دوپٹے کا دوسرا حصہ دیتی، پھر اپنا ہاتھ صاف کرتی، روٹی پکاتی. اور اماں کو احساس نہ رہا کہ ہوا میرے ساتھ کیا. اماں کو احساس نہ رہا. وہ تو گھر میں کوئی دوسرا بھائی آیا تو دیکھا یہ 2 دانت کس کے بڑے ہیں. اماں تھی. اماں نے کہا بیٹا اچھا وہ میں بھی کہوں میرے منہ سے خون کیوں آ رہا؟ بس بیٹا ایسے کچھ چیز میں چبانے لگی تو کچھ چیز ایسی ہوئی میرے خون سے خون لگ. اچھا دانت گر گئے. اماں کے 2 دانت ٹوٹ کے اڑ کے پڑے گر گئے تھے. اماں کا بڑھاپے کا چہرہ اور اس کا جوانی کا ہاتھ اور تھپڑ. اماں کا جبڑا ہل گیا. اور اماں کے دانت کہاں سے کہاں گر گئے. اب اس ماں کو منانے کا وقت ہے. اور ماؤں کے جنازوں میں ویسے بھی اکثر لوگ بے وضو ہوتے ہیں. جنازوں میں لوگ بے وضو جنازہ پڑھتے ہیں. اس ماں کو منانے کا وقت ہے. اس ماں کے سامنے قیامت کے دن چہرہ دکھانے کا وقت ہے. اس ماں کے لیے کچھ ہدیہ بھیجنے کا وقت ہے. اس باپ کے لیے، کسی دادا کے لیے، کسی بہن کے لیے، کسی عزیز کے لیے، کوئی بڑوں کے لیے. ارے اولا والو یہ وقت ہے کملی والے کو درود پاک دینے کے، ہدیہ دینے کا وقت ہے. طے کر لے میں نے روزانہ اتنا درود پاک پڑھنا ہے. میرے کملی والے کو میں درود دوں گا اور کملی والے میرے لیے دعائیں کریں گے. میرے لیے تخت، بخت، برکت، دولت، عزت، قبر کی روشنی، نور اور شفاعت کا وقت مجھے مل جائے گا. یہ 4تھا پیکج ہے. 5واں پیکج کہ اپنے وہ عزیز جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے کچھ کرنے کا وقت ہے. ان کے لیے کچھ کرنے کا وقت ہے. جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے کچھ نہ کچھ محنت، کچھ نہ کچھ کرنے کا وقت ہے. حضور فرماتے ہیں میں روزانہ قبرستان جاتا تھا، دروازے پہ کھڑے ہو کے ان کے لیے کچھ پڑھ کے ہدیہ کرتا تھا. تمنا گیا تو میں نے دیکھا رات کو کچھ لوگ ہیں خواب میں آئے، بوڑھے جوان چھوٹے بڑے. آپ کون ہیں؟ مجموعہ تھا. آپ روزانہ آتے تھے، ہمیں گفٹ دیتے تھے، ہدیہ دیتے تھے. آپ نہیں آئے، ہم انتظار کرتے کرتے واپس لوٹ گئے. کہنے لگے انشاءاللہ اب میں کبھی ناغہ نہیں کروں گا. ایک اللہ والے فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا قبریں پھٹ گئیں، لوگ سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے نکلے اور زمین پہ کچھ چیزیں تھیں ایسے چن رہے ہیں. اور ایک صاحب کو میں نے دیکھا بڑی ٹھاٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کچھ نہیں چن رہے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں اور یہ کیا ہے، یہ سب کچھ کیا ہو رہا؟ کہا کہ لوگ جو ان کے لیے ہدیہ، درود، استغفار، توبہ، اعمال کرتے ہیں یہ وہ چن رہے ہیں. جو ہدیہ بھیجتے ہیں، اعمال کے ہدیے، تسبیح کے ہدیے، صدقات، خیرات، یہ وہ چن رہے ہیں. اور آپ، اس نے کہا میرا ایک بیٹا ہے، وہ اس کا یہ نام ہے اور فلاں بازار میں ایک مٹھائی بھیجتا ہے، فلاں بازار میں وہ مجھے روزانہ ایک قرآن پاک پڑھ کے دیتا ہے. خواب دیکھا، جب خواب دیکھا میں دیکھا تو وہ بھی چن رہے ہیں. تو کہا میں حیران ہوا. ان سے پوچھا آپ وہی نہیں ہیں؟ اور سارا پچھلی بات سنائی. کہا ہاں کہ میرا بیٹا مر گیا. اور اس سے پہلا واقعہ یہ ہے کہ اس کے بعد وہ گئے اسی بازار میں، دیکھا کہ ایک صاحب ہیں مٹھائی بیچ رہے ہیں،
ان کی زبان ہل رہی ہے تو ان کو جا کے ساری نشانیاں بتائیں. کہا ہاں واقعی میں اپنے والد کو روز قرآن پڑھ کے دیتا ہوں. اب تو میرا 5واں جو پیکج آج کا دے رہا ہوں وہ یہ ہے ان اپنے عزیزوں کے لیے پیاروں کے لیے کچھ کرنا ہے. کچھ کرنا ہے. اگر عزیزوں اور پیاروں کے لیے کچھ نہ کیا کیسے نظریں دکھائیں گے؟ اگر ماں کے ساتھ میں نے کڑوا بول بولا، اگر باپ کے ساتھ میں نے کچھ الجھاؤ کیا، یا میرے باپ دادا نے کیا تھا اپنے بڑو باپ دادا کے ساتھ. 5واں پیکج ہے، ذرا غور سے سنیے گا، اہم پیکج ہے اور میں آپ کی توجہ اپنی اس بات کی طرف خاص دلانا چاہ رہا ہوں. میرے باپ نے اپنے باپ کے ساتھ، میرے دادا نے اپنے والد کے ساتھ کوئی الجھاؤ کیا تھا اور ان کے منہ سے کوئی الجھے تھے، کوئی بد اخلاقی، کوئی بے قدری، کوئی بے توجہی ہوئی اور ان کے منہ سے بد دعا نکلی. اور کئی بددعاؤں کے بول نکلتے ہیں. کوئی عرشی لمحہ ہوتا ہے، کوئی عرشی وقت ہوتا ہے، کوئی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور بس کچھ ہو جاتا ہے. اب ان لمحوں میں اور فتنہ گناہوں کی شکل میں، شراب بدکاری کی شکل میں یا کسی اور شکل میں کوئی فتنہ چل رہا ہے، اس کا پیچھا کر رہا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایسے دل ہی دل میں 100 دفعہ دو. اب بھی ایک صاحب ہے وہ روزانہ 70,000 کلمہ پڑھتے ہیں، روزانہ 1.25 لاکھ درود پڑھتے ہیں، روزانہ پتہ نہیں 40,000 سے زیادہ سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں. وہ فارغ بھی نہیں ہے، پڑھتے ہیں. اپنے محسنوں کے لیے کچھ کریں، اپنے عزیزوں کے لیے کچھ کریں. یہ لمحہ ہے، بہت قیمتی لمحہ ہے. اپنا کچھ بنانے کے لیے کریں. تو کیا خیال ہے اگر ہم 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ لیں اپنوں کے لیے اور انہیں ہدیہ کر دیں؟ یاد رکھیے گا وہ صرف ان کو ہدیہ نہیں ہے، وہ ہمیں بھی اس کا صلہ اور ہمیں بھی اس کا کمال مل کے رہے گا اور ہمیں بھی اس کا نظام، اس کی برکتیں مل کے رہیں گی. عزیز خوش ہو جائیں گے، ہدیہ مل جائے گا. حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک فیصلہ کر لیں کہ میں نے روزانہ اتنا پڑھنا ہے اور اتنا پیش کرنا ہے آپ کی بارگاہ میں. بس درود پاک کا فیصلہ کر لیں درود پاک کا. میں کہ قیامت کے دن اللہ کے حبیب اس شخص کی سب سے زیادہ شفاعت فرمائیں گے جو میرے حضور پہ درود بھیجتا تھا، پڑھتا تھا. اور اللہ پاک جل شانہ اس بندے کو دنیا آخرت کی عزتیں برکتیں دیتے ہیں، رزق کی وسعت دیتے ہیں، نسلوں کے لیے تمنگری کامیابی دیتے ہیں اور نسلوں کے لیے خیریں اور برکتیں دیتے ہیں اس شخص کو جو درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے. کچھ طالب علم تھے، بھوکے تھے، کئی دن کا فاقہ انہوں نے کسی پہ ظاہر نہ کیا، پڑھتے رہے. آخر کار رات کو اللہ کے حبیب خواب میں تشریف لائے، فرمانے لگے تم ایسا کرو، فلاں وزیر عیسیٰ اس کا نام، اس کے پاس جاؤ اور اسے نشانی دو کہ تو روزانہ رات کو سوتے وقت اتنے 1000 درود پاک پڑھ کے سوتا ہے اور نشانی یہ ہے کہ پچھلی رات میں تو اتنی دفعہ اتنے 100 درود پاک پڑھ کے تجھے نیند آ گئی تھی، پھر تیری رات کو نیند کھلی تھی تو تو نے وہ درود کی کمی پوری کی تھی. یہ نشانی ہے اور یہ نشانی دو اور کہو کہ ہم طالب علم ہیں اور ہم فاقوں میں ہیں. انہوں نے کیا، وہ حیران رہ گیا اور پھر اس نے تھیلیاں دی. یہ اشرفیوں کی تھیلی ہے حضور کے فرمانے پہ اور یہ اشرفیوں کی تھیلی ہے اس خوشی پہ کہ حضور کی بارگاہ میں میرا درود پہنچ رہا ہے. بڑی منزلیں مل جائیں گی، بڑا نظام بہترین ہو جائے گا، زندگی سنور جائے گی، من کی دنیا آباد ہو جائے گی اور دل کی دنیا شاد ہو جائے گی. اپنوں کا بہت حق ہے. اتنا تو ہے، ایک درویش کہنے لگے میں نے خواب میں دیکھا ایک جوان جہنم کی آگ میں چل رہا ہے. تو میں اس سے پوچھا کہ بیٹا تیرا کوئی نہیں ہے جو تجھے پڑھ کے دے، کوئی وارث تیرا، کوئی تسبیح تجھے دینے والا، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی اعمال دینے والا کوئی بھی نہیں ہے. وہ کہنے لگے بابا جی ایک اماں نے دوسرا نکاح کر لیا اور اماں اپنی زندگی میں مشغول ہو گئی اور مجھے بھول گئی.
वो दरवेश कहते हैं कि मैंने उसका पता पूछ लिया, उस मोहल्ले गली में गया और जाके मां का पता पूछा। उसने कहा अपने शौहर के साथ समंदर में की तरफ गई हुई है, साथ दरिया समंदर है, वहां गई। मैं वहां पीछे पीछे गया तो दूर से खड़े होकर देखा तो मियां बीवी नहा रहे। तो दूर से खड़े होकर मैंने वह सारा ख्वाब बयान किया और ख्वाब बयान करने के बाद कहा कि ऐसे ऐसे मैं आया हूं, आप अपने बेटे के लिए कोई दुआ, कोई सदका, कोई खैरात कर दीजिए। माई पता नहीं किस कैफियत में थी खातून, किस गफलत में, किस कैफियत में। उसने क्या किया, पानी का चुल्लू भर के ना ऐसे साहिल की तरफ फेंक दिया, कहा ये मैंने जाओ बेटे के लिए सदका कर दिया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, माँ इतनी संगदिल सख्त दिल हो जाती है, हो सकती है, माँ ऐसी भी होती है। अफसोस में वापस आ गया, रात को सोया, उस जवान को देखा जो आजाब में जल रहा, भुन रहा, बहुत लिबास लाजवाब, तख्त बख्त ताज, और कहने लगा चाचा अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, मेरी माँ का भेजा हुआ तोहफा मुझे मिल गया और ये उसकी वजह से मेरी बख्शिश का सामान हो गया। तो कहने मैंने पूछा कि वो क्या, कहा कि वो ये है कि ये जब माँ ने ना वो पानी का चुल्लू भर के फेंका था, एक कीड़ा प्यासा था, उसके मुंह में कतरा पानी का गया, उसकी प्यास बुझ गई और उसने दिल से दुआ दी, बस वही निजाम मेरा बेहतरीन हो गया और अल्लाह ने मेरी बख्शिश का सामान कर दिया। कितनी माएं, कितने बाप, कितने नाना, कितनी नानियां, कितने दादा, कितनी बहनें, कितनी बीवियां कब्रों में मुंतज़िर हैं किसी हदिये की, कोई गिफ्ट, कोई हदिया, कोई चारा साज होता, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता, कोई आके हमारा हाल ही पूछ लेता। मेरी अम्मा रहमतुल्लाह अलैह हमें एहतमाम से कब्रिस्तान भेजा करती थी और एक बार नहीं कई बार ये बात फरमाई, बेटा तुम्हें मैं आदी बनाती हूं, कब्रिस्तान में जाओ, आदी बनाती हूं। आज तुम जाओगे, आज तुम जाओगे और आदी बनोगे, कल को हमारे पास फिर आओगे। आज उनकी बनाई हुई आदत कम आ रही है। पुराने दोस्तों को याद करें। मुझे उस दिन एक दोस्त को मैंने याद किया, 18 साल 22 साल ताल्लुक है, उसने आज तक मुझे याद नहीं किया। मेरे साथ एक साहब खड़े थे, मुझसे कहने लगे हमेशा आपने ही याद किया, इन्होंने याद नहीं किया। मैंने कहा हमेशा मैंने अल्लाह के लिए किया है, इसलिए तो किया ही नहीं कि वो तुझे दे तो तू दे, उसने सलाम ही नहीं किया, तुझे क्या जरूरत है सलाम करने की। मैंने अल्लाह के लिए किया और हमेशा मैंने अल्लाह से पाया है। ताल्लुक निभाना, ताल्लुक निभाना थोड़ा है, निभा लेना, और रिश्तेदारी का ताल्लुक निभाना ये वक्त है। और ये 5वां पैकेज है, अपने मरहुमीन के साथ ताल्लुक निभाना भूल न जाना। एक साहब मेरे पास आए कि जी मैं लाहौर कि मैं एक दावा करना चाहता हूं। तो मैंने पूछा कि क्या खैरियत तो है, क्या दावा करना चाहते हैं। कहने लगे मैं, मेरी वालदा की कब्र थी, गोरकन पे दावा करूंगा और उसे अदालत के कटहरे में खड़ा करूंगा। उसने मेरी वालदा की कब्र की जगह कोई और कब्र बना दी। तो मैंने कहा दावा तो आप भी होना था। गोरकन पढ़ते परखते रहते हैं, कब्रों पे नजर रखते हैं, इसका कोई वारिस आता है? बड़े शहरों की बात कर रहा हूं, छोटे शहरों में निजाम कुछ और भी है। अक्सर छोटे शहरों में भी हो जाते हैं, लेकिन बड़े शहरों की जहां कब्रिस्तान गुंजान है तो पढ़ते परखते रहते हैं, कोई आता है, अगर नहीं आता और नहीं आता फिर उस कब्र का निशान मिटते मिटते वहां कोई और परदेशी आ जाता है। मैंने कहा तूने वालदा का हाल ही ना पूछा, माँ का हाल ही ना पूछा, मुकदमा तो तेरे ऊपर होना चाहिए, तुझ पे होना चाहिए था, तो हाल पूछ लेता, तूने हाल ही ना पूछा। आज की इन फुर्सत के लम्हात में, और अगर आप मसरूफ भी हैं तो भी ये मौका है जो मैं फुर्सत के इन लम्हात में आपको 5वां पैकेज दे रहा हूं। और वो 5वां पैकेज ये है कि अपने प्यारों मरहुमीन उनको याद कर ले। हमारे एक दोस्त हैं, वो आर्मी में ऑडिट इंस्पेक्टर थे, रिटायर हो गए। कहने लगे मेरी भाभी थी, कुछ
दीनदारी के मामले में, अखलाक के मामले में, कुछ मामलात में कमजोर थी, बहुत गफलत में थी, और इसी हालत में उसकी मौत आ गई और वो मर गई। तो कहने लगे कि एक दफा मेरी बीवी ने उसे देखा, बड़ी सख्त तकलीफ में, सख्त परेशानी में है और सख्त उलझन में है। तो कहा मेरी बीवी ने मुझे नहीं बताया, दिल ही दिल में उसे 70,000 कलमे का पढ़ा हुआ निसाब दे दिया, हदिया करके। कुछ ही दिनों के बाद ख्वाब में देखा तो वो बहुत अच्छी हालत में है और कहती है मुझे आपका हदिया मिल गया 70,000 दफा वाला, और अल्लाह ने मेरी बख्शिश का सामान कर दिया। मैंने अभी आपसे अर्ज किया, कुछ लोग ऐसे हैं जो रोजाना 70,000 का एक निसाब पढ़ते हैं, और रोजाना 70,000 का एक निसाब पढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे पास 3 दिन में 70,000 खत्म करते हैं, और मेरे पास कुछ लोग ऐसे हैं जो 10 दिन में 70,000 खत्म करते हैं। अब भी हैं, अब भी रोजाना एक खत्म करने वाले कुरान वाले हैं, अब भी हैं, मेरे पास हैं। मुझे लोग मिलते हैं, अपने अमाल, अपना जिक्र, अपनी तस्बीहात, अपना निजाम बताते हैं, मिलते हैं मुझे। ये 5वां पैकेज है अपने उन अजीजों को जिनको भूल गए थे और जिनके पास साल के बाद जाने की रविश बना रखी, और वो साल के बाद भी कहानी खत्म हो गई। नैन्सी बेवा हो गई थी, नैन्सी बेवा हो गई थी जवानी ही में भी, शादी फिर नहीं की। एक छोटी सी बेटी थी मेरी, बस वही उसकी जिंदगी का सामान थी। सारी उम्र जॉब की, उस बेटी को पाला, घर सारी उम्र कर्जे पे लिया, बुढ़ापे में जाके घर के कर्जे उतरे, और बेटी बड़ी हो गई। अब बेटी की शादी की फिक्र हुई, बेटी ने बहुत अच्छी जॉब कर ली। अब हर वीकेंड पर बेटी की दोस्त सहेलियां आती थी, दोस्त आते थे। बेटी एक दफा कहने लगी, अम्मी मेरी दोस्त आती हैं और वो दूसरे दोस्त आते हैं, वो कहते हैं कि आपकी अम्मी बूढ़ी हैं, ये घर में तो नहीं होनी चाहिए, इसके जरासीम होते हैं, बुढ़ापे के जरासीम होते हैं, तो सेहतमंद है, तो तंदुरुस्त है, इसको तो गौशाले में ओल्ड हाउस भेजना चाहिए। तो अम्मी आपकी मैं खैर खबर करूंगी, आपकी सारी लुक आफ्टर, आपकी सारी निगहदाश्त करूंगी इंतहाई। तो क्या ख्याल है? मैं उसकी बात सुन के एकदम हिल गई। नैन्सी कहने लगी, क्या सुना दिया इसने? ये लोग अपनी माओ के साथ कर रहे, यही कुछ मेरे साथ होने लगा है। लेकिन मैंने बेटी को कहा, नहीं बेटी। फिर मैंने बेटी को पिछली कहानी सुनाई, बेटी मैं जवान थी, अभी तो चंद ही माह की थी, तेरा बाप फौत हो गया था एक हादसे में, और मैंने तेरी खातिर शादी नहीं की। बेटी सारी उम्र जॉब की, सारी उम्र मजदूरियां की। बेटी सख्त सर्दी में, सख्त बर्फबारी में मैं अपने काम पे जाती थी, और बाज़ औक़ात मेरे पास वो गर्म कपड़े, वो गर्म लिबास नहीं होता था, लेकिन बेटी मैं तेरे लिबास का ख्याल रखती थी। फिर मैं तुझे स्कूल भेजती थी, फिर तेरी स्कूल की फीसें और स्कूल के अखराजात, तेरी ग़िज़ाओं के मैं पूरे करती थी। और बेटी बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि मैं रात को खुद भूखी सो जाती थी और मैं तुझे कभी भूखा नहीं सुलाती थी। और एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि तू बड़ी हो गई थी और कंबल एक था, और मैंने कई रातें अपने जिस्म पे इधर उधर के कपड़े लपेट के सो गई थी, और बेटी तुझे कंबल पे सुलाया था, और तू पुरसुकून नींद सोती रही थी। उस रात मैंने खिड़की से झांका था, बर्फ पड़ रही थी और हर तरफ सफेदी ही सफेदी थी, और दर्जा हरारत मनफी से कहीं नीचे चला गया था, और बर्फ ही बर्फ थी। हर शख्स ठिठर रहा था, लोगों के घरों में आतिशदान थे, मेरे घरों में आतिशदान था पर लकड़ियां नहीं थी। बेटी वो कंबल मैंने गरम तुझे दे दिया था, और खुद रातों को उठ बैठती थी। तू जवान हो गई थी, मेरी हड्डियां बूढ़ी हो गई थी, तो फिर भी सर्दी सह सकती थी, मैं सर्दी नहीं सह सकती थी, और वो कंबल मैंने तुझे दिया। फिर एक दफा मेरी किसी दोस्त को पता चला, उसने अपना पुराना कंबल मुझे दे दिया, तो फिर मेरा कुछ गुजारा होने लगा। और वो कंबल भी एक जगह से फटा हुआ था, बाज़ औक़ात मेरी एड़ी या मेरा सर या मेरा हाथ बाहर निकलता तो वह हिस्सा मेरा ठिठर जाता था, सख्त सर्दी थी। मेरी बेटी को अपने एहसानात गिनवाए, बेटी एक पल में खामोश हो गई और नजरें झुका के चली गई। लेकिन मेरे अंदर एक सरसराहट सी कि शायद अब मेरे बारे में फैसला हुआ है,
जो कि हमारे मुआशरे का चलन है, जो कि हमारी गलियों का, हमारे घरों की तरतीब है कि बूढ़ों को कहाँ भेज दिया जाता है। बूढ़े घर का विरसा नहीं होते, बूढ़ा पराया विरसा बन जाते हैं। उसके दोस्त आती थी, मैं उनके दोस्तों के लिए खिलाती थी, उन्हें पिलाती थी, उनके लिए पकाती थी। हर वीकेंड पे उसके फ्रेंड्स आते थे और मेरा किचन संभालना मेरे जिम्मे था। मैं नौकरानी भी थी, मैं घर की खादमा भी थी, मैं अपनी बेटी की धोबन भी थी। मैंने उस दिन के बाद अपनी बेटी की खिदमत और ज्यादा करनी शुरू कर दी। कहीं ऐसा ना हो ये मुझे घर से ना निकाल दे, जो कि जमाने में हो रहा। लिहाजा मैंने उसका दिल जीतने लगी। कुछ ही हफ्तों के बाद मेरी बेटी आई और मेरे गले में बांह डाल के प्यार मोहब्बत से मुझे बोसे देने लगी। मैं बड़ी खुश हुई कि इतनी बेटी मुझसे मोहब्बत करती है। और फिर हंसते हंसते कहने लगी, अम्मी वो जो मैंने आपसे बात कही थी ओल्ड हाउस की, उसके बारे में क्या सोचा आपने? कहा कि तीर लगा, मेरा खून खुश हो गया, मेरा अंदर सहम गया, मेरे हाथ पांव शल हो गए, मेरी आंखें पथरा गई, मेरा दिल की धड़कन एकदम साकित और जामिद हो गई और मुझे ऐसे महसूस हुआ कि बस अब मैं मर जाऊंगी। और मैं बोल ना सकी और मैं करीब फटी नजरों से देख रही थी कहीं से कोई पानी का एक घूंट मिल जाए और मेरे लबों पे कुछ तरी आए तो मैं बोलूं। आखिरकार मैंने हाथ बढ़ाया, करीब ही पानी पड़ा था, हाथ ना पहुंच सका। बेटी ने देखा तो वो पानी लाई, उसने मुझे दिया। मैंने पानी का घूंट पिया और उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में सर्द मारी थी, उसकी आंखों में तनाव था। मोहब्बत नाम की चीज नहीं थी, वफा नाम का कोई एक जरा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब रोज का इसरार था, मेरे फ्रेंड्स आते हैं और मुझे ताना देते हैं कि तेरी माँ घर में रहती है और इस तेरे घर में बर्तनों में जिसमें हम खाते हैं, वीकेंड में हमारी दावतें होती हैं, तो बहुत अच्छी पोस्ट पे है, तेरी इनकम बहुत, आमदनी बहुत ज्यादा है, हम तेरे आते हैं, बड़े बड़े लोग मेरे फ्रेंड हैं वो आते हैं, उन सब ने तो अपनी माँ को उधर भेजा हुआ है, तूने अपनी माँ को रखा हुआ है। अम्मी मेरी इंसल्ट होती है, अम्मी मेरी तौहीन होती है, अम्मी मैं आपको रोज मिलने आया करूंगी, आपकी हर जरूरत पूरी करूंगी। आखिरकार एक तो मेरी बेटी ने मेरा हाथ पकड़ा, जो कि बड़ी ताकत और मजबूती से पकड़ा हुआ था, और मेरी बेटी एक कशरी बांधी, बैग, मेरा कुछ कपड़े और मुझे ले गई। मैं ऐसे महसूस कर रही थी जैसे तख्तेदार की तरफ किसी को फांसी पे लटकाते हैं तो उसके पांव नहीं हिलते, उसके कदम जमीन छोड़ती नहीं और वो घसटता हुआ मैयत जाता है और मरे हुए को मार दिया जाता है। ऐसे ही मेरा हाल हुआ और मुझे छोड़ आई। मैं कई दिन तक रोती रही। वो रोज आती थी, थोड़ी देर बैठती थी, पहले ज्यादा देर बैठती थी, फिर वक्त कम होने लगा। फिर कहने लगी, अम्मी मैं जॉब के हाथों मसरूफ हूँ, मैं 2-3 दिन के बाद आया करूंगी। फिर 2-3 दिन के बाद आना भी छोड़ गई, फिर वीकेंड पे आना शुरू हुई, फिर वीकेंड पे आना भी छोड़ गई, फिर महीनों के बाद आना शुरू हुई, फिर वो भी आना छोड़ गई। फिर साल के बाद क्रिसमस का जब दिन होता था, मेरी बेटी मुझे मिलने आया करती थी फूलों का एक गुलदस्ता लेकर। इस दफा ऐसा हुआ मैं शाम ढले सारा दिन मैं स्वेटर भी बुनती रही अपनी बेटी के लिए। एक बड़ा खूबसूरत स्वेटर मैंने बुना, क्योंकि मैंने सारी उम्र खिदमत की थी, पेशा किया था, मजदूरी की थी, तो हैंडीक्राफ्ट या हाथ की बनी हुई चीजों की मैं बहुत माहिर थी। मैं स्वेटर बुनती रही और स्वेटर बुनते बुनते मैं बालकोनी में बैठी सामने देखती रही। मेरी बेटी सामने गेट से ना उसकी गाड़ी आएगी, फला रंग की फला नंबर की गाड़ी है, तो मैं अपनी बेटी को जो है दूर से देखूंगी, साल के बाद आ रही। फिर मैं अपनी बेटी का वो मंजर देखती थी, झूले में होती थी, उसको मैं झूला देती थी। कभी अपना सरताज, मुझे शौहर याद आता था। कभी जवानी की यादें, कभी जवानी की बातें मुझे याद आती थी। फिर जब बेटी को देखती थी, उसका मासूम चेहरा, तो अपने आंसू खुद ही पी जाती थी। मैं वो सारा मंजर याद करती रही। आज मैं अपनी बेटी को देखती, साल के बाद मेरी बेटी मेरे पास आएगी। लेकिन क्रिसमस की तकरीबात इतनी ज्यादा थी, मेरी बेटी मुझे भूल गई और मुझे शाम हो गई। मुझे एहसास न रहा कि मैंने अंदर जाना है। दिसंबर की सर्द रात है, बर्फ पड़ गई है। मुझे याद ना रहा और किसी को भी याद ना रहा। हर शख्स क्रिसमस की खुशियों में मशगूल था कि मुझे अंदर बुलाते। मुझे ठंड लग गई, मुझे नमूनिया हो गया। फिर मेरे पास मेरी खिदमत गुजार आई एक ऐसी
जिससे मैं मोहब्बत करती थी, वो कुछ मुझसे उनस करती थी। मैंने उसको अपने गम की यह दास्तान सुनाई और गम की यह कहानी सुनाई, और वो गम की कहानी ऐसी थी, उसके आंसू टपक पड़े, उसके आंसू छलक पड़े। उसने मुझे तसल्ली दी, कहा कोई बात नहीं, लेट नाइट देर में आ जाएगी। पर बेटी ना आई, और उसी रात मैं इस दुनिया से रुखसत हो गई। अपनी बेटी को आंखों में दीदार की हसरत लिए मैं रुखसत हो गई। ये एक मुआशरे की कहानी का सच्चा अक्स है जो मैंने बयान किया है, सच्ची जिंदगी है, सच्ची तस्वीर है जो मैंने बयान की है कोई ऐसा जिसने अपनी मां से बेवफाई की थी, जिसने अपने बाप से, अपनी बीवी से, जिसने अपनी औलाद से, जिसने अपने किसी दोस्त से, है कोई ऐसा जिसने कहा था कि मैंने फलां बंदे से जुल्म किया था, आज मुझे एहसास हुआ वो मर गया, मैं उसके साथ उसके जुल्म की दास्तान कैसे माफ कराऊं? वो ऐसा है जो कलमा पढ़ के उसको हदिया दे दे, जो दरूद पाक पढ़ के उसको हदिया दे दे, जो ऐसा है जो कुरान पाक की तिलावत करे और उसको हदिया दे दे। ये 5वां पैकेज है मेरा अपने अजीजों, अपने मोहसिनों को याद रखने का। अगर मुझसे कोई खता हो गई, मैं मैरी बन गया और कोई मजलूम था ऐसी जो नैन्सी था, जिसके हक थे, जिसके हकूक थे, और मेरे अंदर की मैरी ने वो हक हकूक अदा न किए, और वो जिसके हक मैंने देने थे वो वजूद नैन्सी चला गया, अब मैं क्या करूं? मेरे पास 2 पैकेज हैं, एक मौत से पहले का, एक मौत के बाद का। उनके पास तो एक पैकेज है, मरने से पहले का। मरने के बाद का पैकेज तो मेरे कमली वाले की बरकत से मुझे मिला है। ये तन्हाइयां, ये लम्हात अजीजों को याद करने में लग जाए। मुझे रोज उसके गम में यूं ही सारी रात करना, कहीं चुप के रोना, कहीं दिल से बात करना। अपने अजीजों को देखा, अपने प्यारों को देखा, अपने मौसमों को देखा, या नहीं देखा, या किसी से ज्यादती हो गई। मैं बहू थी, मेरी किसी सास से ज्यादती हो गई। मैं बहू थी, मैं नंद थी, मेरी बहू से या भावज से या जेठानी से या देवरानी से, रिश्तों के रिश्ते से कहीं खता हो गई। जज्बात की दुनिया में मैंने कुछ कर दिया, कुछ कह दिया, उसका दिल चिर गया और वो इसी दुखियारे दिल के साथ दुनिया से रुखसत हो गई। आओ, अब मौका है, इस मौके में उनको मना लो, उनको हदिया दो, उन्हें दरूद पाक, उन्हें कलमा दो, रोजाना कुरान पाक की तिलावत के साथ मोहब्बत और प्यार बढ़ाओ, अल्लाह से बातें करो। और छठा पैकेज ये है, जिस कुरान को जिंदगी भर देखा नहीं या कभी रमजान में देखा, उस कुरान से दोस्ती करें, उस कुरान से मोहब्बत करें, उस कुरान से मोहब्बत और दोस्ती और प्यार करें। याद रखिएगा मेरी बात, मैं छठा पैकेज बता रहा हूं। कुरान को भूल गया, मैं कुरान को भूल गया, और कुरान से जो मोहब्बतें और प्यार थी। याद रखिएगा, कुरान दुआएं भी देता है, बद्दुआएं भी देता है। कितने घरानों के वाकयात मेरे पास है, छठा पैकेज बता रहा हूं, जो फुर्सत के लम्हात में कोरोना के नाम पे अल्लाह की तरफ से आजमाइश और इम्तहान आया और हम घरों में बंद हो गए। अब ये मैं छठा पैकेज बता रहा हूं, वो कुरान है। छठा पैकेज बता रहा हूं, कुरान है। अल्लाह, कुरान है, कुरान। ये दुआएं भी देता है, ये बद्दुआएं भी देता है, ये सिफारिशें भी करता है, जहन्नम से निकलवाता भी है, जहन्नम में दाखिल भी करता है। यज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। कुरान, मेरे पास कई वाकयात हैं, मेरे इस शोबे पे, इस मौजू पे बकायदा दर्स हैं कुरान की तिलावत पे, वाकयात ही वाकयात हैं। कितने लोग ऐसे थे जो कहते थे हमारे घरों में जिन्नात हैं, जादू हैं, बंदिशें हैं। सास ने किया बहू पे, बहू ने किया सास पे, देवरानी ने किया जेठानी पे, फला रिश्ते ने किया, और पेशावर लोगों ने घरों को उलझवा दिया, लड़ाइयां करवा दी। हत्ता कि मेरे पास ऐसे वाकयात भी हैं, सच्चे मुशाहिदे से बयान कर रहा हूं, कि किसी पेशावर आदमी ने चंद सिक्कों की खातिर उनको कहा कि फलां बंदा तुम पे जादू करता है, उसने जाकर उसको गोली मार दी और कत्ल कर दिया और घर बर्बाद हो गया।
हालांकि कहानी पता क्या थी? कहानी ये थी कि असल में कहानी ये थी कि कुरान जो घर में पढ़ा था वो बददुआएं दे रहा था। कुरान जो सामने जुस्तान में, अलमारी में कहीं, वो बददुआएं दे रहा था। कितने अहले कश्फ ऐसे हैं जिन्होंने कुरान की बददुआएं कानों से सुनी है और कुरान की दुआएं कानों से सुनी है। कुरान की बददुआएं सुनी है कि मौला इन्होंने मुझे भूले हैं, इन्होंने मुझे छोड़ा है, अल्लाह इनको वीरान कर दे, अल्लाह इनको बेआबाद कर दे, अल्लाह इनको बर्बाद कर दे, अल्लाह इनकी खुशियां छीन ले, इनको गम दे दे, काली घटाएं सदा इन पे रहें, कभी सफेद नूर की रोशनी छांव छतरी इन पे ना आए, अल्लाह इनके दिलों को हमेशा के लिए तोड़ दे, नफरतों के नाम पे और झगड़ों के नाम पे और मुकद्दमात के नाम पे और लड़ाइयों के नाम पे। कुरान की बद्दुआएं लगी हैं, तो उसको जादू कह रहा, तो उसको जिन्नात के साए कह रहा, तो उसको परछाइयां कह रहा, तो उसको बदरू कह रहा, तो उसको काली देवी का जादू। तो क्या कर रहा? देखिए मेरी बात सुन, बीमारी में अगर सही डायग्नोस तशखीस हो जाए तो इलाज जो है वो 100% सही होता है। अगर बीमारी में 100% तशखीस हो जाए, घरों में झगड़े, लड़ाइयां, मुश्किलात, मसाइल, तलाकें, परेशानियां, नाचाकियां, दुख और बंदिशें और नाकामियां, इसकी वजह जादू है, जिन्नात हैं, मेरे अमाल हैं, मेरे पीछे से कोई बद्दुआएं ताक़ुब कर रही हैं, कोई लानत मेरा पीछा कर रही, मेरी नस्लों का पीछा कर रही, या कुरान पाक की बद्दुआ है जो मेरे घर में कुरान पड़ा है, जो कुरान क़यामत के दिन मेरी बख्शिश का सामान, मेरी कब्रों का सामान, मेरी सच्चाइयों राहों का सामान। क्या वो कुरान है ऐसा कि जो कुरान जो है मेरी पकड़ का सामान और मेरी बद्दुआओं का जरिया बन रहा है? कई लोगों ने ख्वाब में देखा, ये मौजू बहुत लंबा है, ये मौजू बहुत तवील है। उन्होंने ख्वाब में देखा, किसी कहने वाले ने कहा, किसी कहने वाले ने कुरान की आवाज आई और कहने वाले ने कहा तुम मुझे भूले, हम तुम्हें भूल गए। मैं तो वो था जो तुम्हारे लिए क़यामत के दिन कब्र में बख्शिश का सामान था और कब्र में राहत का सामान था। क्या मैं वो कुरान दुनिया में राहत का सामान नहीं बन सकता? कब्र की जिंदगी कितनी है, दुनिया की जिंदगी कितनी है? दुनिया की जिंदगी 50 से 100 साल है, ज्यादा से ज्यादा, और कब्र की जिंदगी 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 1,00,000 साल नहीं, 1 करोड़ साल नहीं। अल्लाह के इल्म में है, हमेशा हमेशा के लिए निजाम है। कब्र में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जो बंदा गया है वो कब्र में इंतजार कर रहा है क़यामत की, बस गया, वापसी मुमकिन नहीं, दूसरा जन्म नहीं है। पहलू दे रहा हूं मैं आपको। कई लोगों के घरों के घर आप बेआबाद थे, बर्बाद थे, मैंने कुरान के पैकेज दिए, कुरान को पढ़ना शुरू कर। कई दफा ऐसा हुआ कि मैं बंदों पे दम कर रहा था तो उनके ऊपर जिन्नात आ गए। मैं कोई जिन वाला बाबा नहीं हूं, ना मेरे जिन ताबे हैं, ना मुझे कश्फ, करामत, कमाल और विलायत का दावा है। मैं एक आम सा आदमी, नहनु मिनल मुस्लिमीन। वो जिन आ गया और फिर वही जिन जब कुरान पाक की घरों में तिलावत शुरू हुई और वही जिन जो है खत्म हो गए और कुरान पाक की तिलावत, जिन खत्म हो गए और जिन चले गए और कहने लगे इस घर में नहीं रह सकते, इस घर में या कुरान रहेगा या फिर हम रहेंगे। मेरे दोस्तों, अल्लाह वालो, ये मैं आपको एक छठा पैकेज दे रहा हूं इन फुर्सत के लम्हात में। हमने इस पे कितनी मेहनत की है और कितनी मेहनत करनी है, और कुरान के हरफों और नजरों पे हमारी नजर जाए। जो कुरान को देख के पढ़ेगा उसकी नजर ताकतवर रहेगी, जो कुरान को देख के पढ़ेगा उसकी नजर में नूर होगा, जो कुरान को देख के पढ़ेगा उसके चेहरे पे रोशनी और नूर और रूहानियत होगी, जो कुरान को देख के पढ़ेगा अल्लाह उसके दिल को पाक और मासूम कर देंगे। जो कुरान को देख के पढ़ेगा, जब जिस वक्त अल्लाह पाक उसकी रूह निकालेंगे, इजराइल उस पर मुसल्लत होगा, उसकी रूह का, सांसों का ताना बाना टूट रहा होगा, अल्लाह कुरान को हरफों समेत सामने कर देगा और कुरान को देखेगा, और कुरान को देखते देखते उस साहिब कुरान अल्लाह की बारगाह में और अल्लाह के पास चला जाएगा। कुरान है जो अपनी ताकत और अपनी कुव्वत के साथ मौजूद है। कई लोगों ने बद्दुआएं सुनी हैं कानों से कुरान की। कई लोग मुझे ऐसे मिले जिन्होंने घरों में सिसकियों की आवाज आती थी, सिसकियां, और वो समझते थे हमारे घर में जिन्नात है, और वो समझते थे हमारे घर में जादू है, और वो समझते थे हमारे घर के ऊपर कोई चीज मुसल्लत है, और उसकी वजह से सिसकियां जो हैं
وہ آتی تھی. اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے اس جادو جنات چیزیں مسلط اس کا بہت حل بہت علاج بہت ازالہ کرنے کی کوشش کی, مال بھی جان بھی وقت بھی خرچ کیا. اور جی کسی صاحب نظر کے پاس گئے جب, تو صاحب نظر نے کہا نہ جادو ہے نہ جنات ہے نہ آسیب ہے نہ کوئی بدرو ہے, کچھ بھی نہیں. آپ کے گھر میں قرآن کی سسکیاں ہیں اور قرآن کا رونا ہے اور قرآن کی فریادیں ہیں کہ مولا جنہیں نے مجھے ویران کیا ان کو ویران کر دے, ان کو بے آباد کر دے, ان کی نسلوں سے سکھ چھین لے, ان کی نسلوں پہ سے محبتیں چھین لے, ان کی نسلوں سے عافیتیں چھین لے, بس چھین لے, سب کچھ چھین لے. میرے پاس تو تجربات ہیں, میرے پاس تو واقعات در واقعات ہیں, مشاہدات ہی مشاہدات ہیں. نے ان کو قرآن پہ لگایا, حتیٰ کہ یہاں تک جن لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آیا تو میں نے انہیں بتایا, میں نے کہا کلمہ پڑھتے رہو, یا اللہ اغفر لی ورحمنی وعافنی یا رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. کلمہ انگلی پھیر پہ پڑھتے رہو اور نیت کرو کہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے. جب تک نہیں پڑھتے قرآن دیکھو, قرآن کے حرفوں کی زیارت ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے. قرآن کو دیکھنے سے ثواب, کعبہ کو دیکھنے سے ثواب, گنبد خضرا کو دیکھنے سے ثواب, قرآن کو دیکھنے سے ثواب, ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے سے ثواب, اور اللہ والوں کے علماء کو دیکھنے کے چہرے کو دیکھنے سے ثواب. کچھ چیزیں ایسی ہیں صرف دیکھنے سے ثواب ملتا ہے اور دیکھنے سے نیکیاں. جس طرح دیکھنے سے گناہ ملتا ہے بعض چیزوں کو, اس طرح دیکھنے سے ثواب بھی ملتا ہے. یہ نقطہ یاد رکھیے گا, جس طرح بعض چیزوں کو دیکھنے سے گناہ ملتا ہے اس طرح بعض چیزوں کو دیکھنے سے ثواب بھی ملتا ہے, اور یہ سچ ہے.